Connect webinar. The special speaker of the day, PK Gautam. He is design leader, entrepreneur, and founder and director of the Mfable, a Pune-based product design studio. He has around 17 plus years of experience in UI UX product design, designing the governance, and instrumental in helping the SaaS enterprise and technology driven organizations. He is craft user centric, high impact digital product. His work bridges the strategy design forcing on solving complex business problems through human centered design, measurable outcomes, and innovations. He is also actively involved in mentoring, consulting, and contributing to the design and startup ecosystem through workshops. Recently, he is awarded as a best design company of the India in 2021, and we are the witness about his success. He focuses on everywhere is a delivery and everywhere is the design creates the impact, means we can say he is the master of the designs. Here, as a Education Industry Connect, I represent as the education segment because we are working with the Internscope theme. We want to help the students for being employable in their career, and as now the AI is growing ours. So we'll introduce about Internscope. Internscope is the product child of the VM3 Tech Solutions LLP and VM3 Tech Solutions. It is a digital solution company. We focus on modern software development, works on real client projects across all domains, strong executions, capability through the Internscope platform. What we do, what VM3 do, VM3 support the Internscope candidate for mentoring, assisting, giving them the live assignments, and building the real-time experience for the students when they are onboarding on an Internscope campus to corporate program. What is Internscope? It is the early career talent and internships ecosystem, project-based learning, hiring, and platform. It bridges the college student and industries. In one liner, you can say Internscope means mentorship, internship, live assignment, and being the employable, the early stage career here. Next slide. So actually the problem we identified, can you move on a first slide, please? The problem we have identified, that is the core opportunities. The students were not getting the exposures to work on real-time project, and the other hand, colleges, education systems were having the internship mandate. But the companies are not ready to give the high risk project or live project to students or early stage career. And there was the actually industry connect missing. So what it was happening, these people were moving ahead. They were doing some courses and they trying to fill the gaps, but not the exactly industry connect was not matching with their profile. Somehow something it was missing, whether it's tools, technology, personality, behavior, or something else. Means everyone may have the different problem with the communications systems also here. So here we are doing the attempt, like Gautam, you people are helping us. Similar way, all the business owners, we are connecting them by providing the cost effective subscriptions, giving them resource pool, tried and tested talent, POC research, and employer branding. These people can work for your organization to support this ecosystem to build the youth for the nations. What is the measure? These Internscope students can get the benefit. They can start their career, fill their career gap. See, due to recession, COVID, and so many layoffs, there are women who are losing their job just because of their emotional maternity responsibilities, and they are having the gaps. And sometimes they need to brush up the skills. And while brushing up the skills, they has to work it out the live experience. They can get the experience, guidance, how to approach, how to build your resume profile.
So you can switch the domain, profile building, authentication, and again mentorship, live project, and internship through the campus to corporate program. Last week we have identified there are the more inquiries being building the career in full stack development and the UI UX. But again, these people are wondering how to start, where to start, and what is the right approach to build the career in UI UX field also or design builds. Because whenever we talk about design, it goes with the intention as a branding material. But I have seen your effort to move ahead in design, means design can be scalable, design can be measurable. So welcome Gautam to this webinar, and I hope student will get all these benefits through this webinar: corporate skill, understanding the internship, what is industry mentoring you are implementing in your organization also, and together we can improve the employability and definitely the confidence and job readiness in these students. So over to Gautam. Whatever I have explained, but would like to have your intro in your words because you can explain your career and your organization in better words because it's your baby. Over to you. Thank you so much, Vasanti. And welcome everyone for this session. And I'm very grateful that at least we're having this kind of conversation. Uh, uh, I mean, this is very, very important because when we talk about the students and the upcoming generation, there's a lot of shift that is happening right now in the industry. So everyone should be very, very careful about how things are moving. And ये कुछ डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, but बहुत सारे companies and educational institutes, they are not in sync what is happening right now and how things are changing even faster. मतलब जितना suppose AI का impact and stuff which is what is happening right now, जितना हमें लग रहा है कि जितना इम्पैक्ट है उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है आगे जाके. सो it's not that it's very scary, but we need to understand where we stand right now and what changes are coming on our way. अगर वो एक बार समझ में आ जाएगा, then we can align ourselves. So both the companies and the industry हो या फिर educational institutes हो, they need to align themselves to tackle this kind of a problem. क्योंकि ये सिर्फ अकेले का प्रॉब्लम नहीं है इंडस्ट्री का, बिकॉज skill gap is a very very big challenge in the industry. Whenever I go for any kind of recruitment or stuff, I find it very very difficult. ऐसा नहीं है कि jobs नहीं है या ऐसा कुछ, but वो job talent fit वाला problem बहुत ज्यादा है because of the perception also. So specifically in my field, इन डिजाइन फील्ड, एक तो परसेप्शन बिल्डिंग बहुत ही अजीब तरीके से हुआ है स्पेसिफिकली इन इंडिया कि यूआई यूएक्स डिजाइन इज मोस्टली वेरी आउटकम ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ करियर वेयर यू बिल्ड सम यूआई, कुछ स्क्रीन्स बनाने हैं, उसमें कुछ ग्राफिक एलिमेंट्स रहेंगे और वैसा काइंड ऑफ चीजें. दिस इज लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग. वो टेंजिबल आउटपुट है व्हाट यू एक्चुअली डिलीवर, बट वो डिलीवरी वाला लेवल पे एआई इज प्लेइंग द रोल राइट नाउ. आगे ऐसा होगा कि वो पर्टिकुलर टॉप लेयर ऑफ डिलीवरी probably will be completely replaced by AI. बहुत सारी चीजें हम लोग अभी हमारे प्रोसेस में भी इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए हैं. So where the human intervention is going to be very important, that is where we need to throw some light. So students can also align themselves कि ये particular field में अगर आना है तो क्या expectations रखनी है. So we'll talk about it. So I just hope that ये वाला conversation काफी helpful हो. मेरा expectation ये है कि जितने भी लोग जो भी listeners हैं इसमें, they should at least try to understand कि कहाँ पे they can fit in themselves. एंड अगर कोई पर्टिकुलर स्किल सेट्स को लेके कुछ कंफ्यूजन है, कुछ है, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई कैन टेक इट एंड आंसर देम. बट इन जनरल आई विल ट्राई टू आंसर जितना पॉसिबल हो सकता है. सो आई एम टोटली ओपन टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ डिस्कशन. ओवर टू यू, वासंती. Yeah, okay. I will throw the first question. As you rightly mentioned, the
era is changing, AI is changing the world every day, day by day, and we are getting new insights, new tools, new tools. Yeah. So, what are the most important trends students should adopt first? Because see, trend is changing there, but they have to approach it because they are students. They have learned it and implement it also. So, what are the current trends and the future you can expect or predict where they should fit them in that right box? Yeah. या सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिजाइन लोग ऐसा उसको ऐसा परसीव करते थे कि दिस इज अ गुड टू हैव स्किल सेट. सो स्पेसिफिकली इन द आईटी इंडस्ट्री इट वाज लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रही है तो उसके ऊपर डिजाइनर्स को हायर करते हैं टू मेक इट लुक गुड. वो वाला एरा 10 साल पहले जा चुका है. मतलब मेक इट लुक गुड जो वाला पार्ट था लोगों का परसेप्शन, उसमें एक चीज मैं मेरे क्लाइंट्स को भी ये चीज बोलता हूँ कि हाउ कैन यू मेक समथिंग विच इज अगली. राइट. आप गंदे बना ही नहीं सकते. यू सो मेक इट लुक गुड वाला सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए कभी भी. सो ये फील्ड में पर्टिकुलरली क्या शिफ्ट हो रहा है वहां पे ये हो रहा है कि डिजाइन इज बिकमिंग वेरी वेरी वैल्यू ड्रिवन. सो डिजाइन कैन एक्चुअली इम्पैक्ट बिजनेस ग्रोथ. सो उसमें जो माइंडसेट शिफ्ट वाला चीज हुआ है एंड द कोलैबोरेशन अप्रोच अभी काफी ज्यादा हो रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो उसमें टेक साइड ऑफ पीपल आर जस्ट वन स्टेक होल्डर. बिजनेस टीम्स रहते हैं, सेल्स वाले टीम्स रहते हैं, मार्केटिंग टीम रहते हैं, सीएक्सओ लेवल के लोगों के साथ हम लोग पहले ये गोल सेट करते हैं व्हाट वी रियली वांट टू अचीव. डिजाइन वाली बातें बहुत लेट में आती है. सो अभी हमें थोड़ा सा वो पिक्सल थिंकिंग से प्रोडक्ट थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा. सो पिक्सल बाय पिक्सल ये सारी चीजें तो बहुत सारी चीजें एआई इज गोइंग टू जनरेट. अभी एआई इज काफी हेल्पफुल टू मेक थिंग्स फास्टर एंड प्रोबेबली बेटर ऑल्सो. एंड इतने सारे फ्रेमवर्क्स टूल्स और वो सारी चीजें अवेलेबल हो गई है मार्केट में. सो वहां पे एआई असिस्ट वर्कफ्लोज और वो सारी चीजों में हमें फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉस फंक्शनल टीम्स वर्क्स. सो हमारा आउटपुट कहाँ पे जाके इम्पैक्ट करने वाला है, उसको डेवलपमेंट टीम कहाँ से लेके कहाँ तक लेके जाने वाले हैं उसका. अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलीज हो रही है तो वहां से फिर बिजनेस टीम कैसे वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे. सो ये सारे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. सो डेटा को लेके डिजाइन करना जो एक पॉइंट था पहले, वो अभी उसको लेके कैसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. सो दैट इज व्हाट थिंग्स आर शिफ्टिंग. सो अगर समराइज करूं कि क्या क्या चीजें शिफ्ट हो रहा है तो वो एक ये है कि हमें पिक्सल बनाना और यूआई बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ वी कैन फोकस ऑन यूएक्स. यूजर्स जर्नी कैसे होने वाला है, कैसे वो प्रोडक्ट को यूज करने वाला है द यूजर. एआई को हम लोग एक असिस्टेंट की तरह, एक टूल की तरह यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हमें डिजाइन सिस्टम स्केलेबिलिटी बिजनेस फंक्शन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. Okay, means the candidate should not have the employee mindset. He has to see into the business itself. Okay? What's the revenue or what's the ultimate goal I'm achieving with the CEO or the decision maker of the organizations here. Okay. So as you mentioned, students should focus on a product thinking and problem solving approach. But in early stage, how the student can decide what first? Because it is interlinked. So how they can take the decision whether I should focus on a design, look and feel, or experience, or right the user's journey, or the strategy in a thought process here. So या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका मेरे कंपनी में हाउ वी एक्चुअली डू इट कि व्हेनेवर वी हायर एनी इंटर्न, उनको एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह हम लोग हर मीटिंग्स में रखते हैं. एंड दे ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है ये सारी चीजें. एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि
जो लोग नॉन डिजाइन बैकग्राउंड से आते हैं एंड देन दे डू सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड स्टफ, दे वांट टू हैव अ करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो उनके लिए कभी कभी कैसा होता है ना कि लाइव प्रोजेक्ट्स बहुत सारे किए नहीं रहते हैं वो लोग। सो उसके चक्कर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट और ये सारी चीजें जो मैं बोलता हूँ ना, वो उसका एक्सपोजर नहीं मिला होता है। सो फर्स्ट आई सजेस्ट इज कि कोई भी डिजाइन स्टूडियो या फिर कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कि एक एटलीस्ट इन हाउस डिजाइन टीम है, वहाँ पे पहले वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई इंटर्नशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज, कि आपको लाइव एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड टू एंड कोई एक प्रोजेक्ट का। सो आप फोकस उसमें ज्यादा रखना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर यू आर गेटिंग जो भी कंपनी में आप जा रहे हो, एंड वहां पे आपको कौन से डेप्थ पे वो एक्सपोजर मिल रहा है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सो देर आर कपल ऑफ interns who joined us 3 years ago. They are managing full scale projects right now because वो उस टाइम से वो धीरे धीरे करके वो बिल्ड कर गए। सो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंटर्न्स इज द क्यूरियोसिटी वाला पार्ट, वो बहुत होना चाहिए कि मतलब क्या चल क्या रहा है, मतलब कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बिकॉज वेन एवर दे अंडरस्टैंड दे सिट इन अ मीटिंग एंड अंडरस्टैंड दैट ना, वहाँ पे हम लोग कभी कभी क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, कभी क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, कभी टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें इज समथिंग विच इज लाइव प्रोजेक्ट्स में आने के बाद ही जाके वो एक्सपोजर मिलेगा। प्लस ऑन द जॉब जो चीजें होती हैं, जैसे कि लेट्स से यूजर रिसर्च हो गया, यूजर पर्सोनास बनाना, यूजर फ्लोज बनाना, फिर उसके दिस हैपेंस बिफोर द यूआई स्टेज, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर स्क्रीन बनाने से पहले वो सारा धीरे धीरे करके उनको फिर पता चल जाता है, एंड दे कुड एबल टू कनेक्ट दोस Hmm. डॉट्स। तो एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट एंड क्यूरियोसिटी इज ओनली गोइंग टू हेल्प देम बेटर। Okay, this is about the personality trait, but what are the in technical tools they can adopt? Uh, यस, यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि मतलब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं अगर बोलूँ ना, मैं अगर 17 साल का से डिवाइड करूँ, पहले 10 साल में ना वी हैव सीन पीपल यूजिंग फोटोशॉप टू क्रिएट यूआईस। yeah. मतलब उससे पहले तो पावर पॉइंट में भी बना लेते थे। Hmm. ठीक है, सो जैसे सपोज यू टेक पावर पॉइंट, उसमें देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, राइट? सो वो शेप को यूज करते करते इंडस्ट्री में बनाते थे लोग स्क्रीन्स, एंड उस टाइम पे द फोकस वाज मोर टुवर्ड्स हैविंग अ बेटर यूजेबिलिटी। जो प्रोडक्ट सपोज है ऑलरेडी, तो उसको कैसे बेटर बनाया जाए, उससे पहले क्या करो कि थोड़ा सा स्क्रीन सिमुलेशन काइंड ऑफ कर लो, देख लो कि कैसा सही है, फिर उसको अडेप्ट करके यूज कर लो। देन फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर दे शिफ्टेड टुवर्ड्स यूआई डिजाइन, एंड देन बिकॉज वो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड से आए थे, तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और वो सारी चीजें यूज करना चालू कर दिए। बट एक्चुअल इंडस्ट्री में स्केच यूज होता था बहुत ज्यादा, एंड देन व्हेन फिग्मा केम, मैं ये टूल लेवल पे पहले बता देता हूँ। व्हेन फिग्मा केम, द बेस्ट पार्ट फिग्मा हैड वाज स्केच वॉज वेरी ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, वो सिर्फ मैक के लिए काम करता था। सो 2012-13 तक भी सबके पास मैक नहीं हुआ करते थे, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, एंड उसका लाइसेंस कॉस्ट वाज आल्सो वेरी वेरी हाई। सो फिग्मा वाज अ रिप ऑफ ऑफ स्केच। सब कुछ जो फीचर स्केच में था वो सारी चीजें फिग्मा में थी। फिग्मा वाज ब्राउजर बेस्ड, एंड ब्राउजर बेस्ड होने के कारण आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर लो। सो सडनली मार्केट शिफ्ट कर गया पूरा। सो दे मूव टुवर्ड्स हैविंग अ प्रॉपर ईवाई डिजाइन टूल, एंड देन धीरे धीरे करके अभी के स्टेज में इफ यू लुक एट इट, देन फिग्मा के अंदर ही जितना लेवल ऑफ एआई इंट्रोड्यूस हो गया है, एंड जो जितना चीजें वहां पे मिल रही है, वन स्टॉप सोल्यूशन काइंड ऑफ हो गया है। इनफैक्ट हमारे तो जो लोग डेडिकेटेड ग्राफिक डिजाइनर्स है, दे आर यूजिंग फिग्मा फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग ऑल्सो। सो वो एक हो गया। इलस्ट्रेटर इज स्टिल इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे, क्योंकि there's a lot of branding element that's overlap with यूएक्स डिजाइन। तो उस टाइम पे अगर कुछ प्रिंट रेडी मटेरियल बनाना है तो उसके लिए दैट इज हेल्पफुल। नोशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं वैसे काइंड ऑफ टूल्स बता रहा हूँ जो
अभी भी दे आर सर्वाइविंग, एंड आगे जाके भी अगर थोड़ा सा कंपटीशन टफ भी होता है तो प्रोबेबली स्टिल इंडस्ट्री विल बी यूजिंग दैट। नोशन डॉक्यूमेंटेशन एंड केस स्टडी स्ट्रक्चरिंग और वो सारी चीजें, नोट टेकिंग काइंड ऑफ, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स एआई। सो हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली क्लाउड यूज करते हैं, क्लाउड एंड जेमिनाई। चैट जीपीटी थोड़ा सा कम ही यूज करते हैं, बट स्टिल जो भी मिल रहा है स्टूडेंट्स के लिए तो एक उनका ईमेल आईडीज आर वेरी वेरी पावरफुल। सो सारी चीजों का तो मेरे हिसाब से उनका अकाउंट बना के उसको यूज करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि बेसिक ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो सारे इंफॉर्मेशन कोई सर्टिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, वो सारे इंफॉर्मेशन वैसे भी अवेलेबल है। सो गो एंड चेक आउट एप्पल का गाइडलाइन। सो उसमें हर डिवाइस के डिजाइन के लिए क्या फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं वहाँ पे। फिर गूगल के लिए भी जाके सर्च करके देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस और सारी चीज़ों के लिए कैसे बनाना होता है। एंड देन थोड़ा सा बेसिक अगर पता है HTML CSS कैसे वर्क करता है, वो दैट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज फिग्मा में एक डेव मोड करके है। सो वेन एवर यू डिजाइन एनी पर्टिकुलर यूआई, उसका डेव मोड में वो सारे चीजें ऑलरेडी आ रहा है जो कोडिंग लेवल का। सो वो डेवलपर कैन टेक इट एंड देन यूज इट। सो फॉर डिजाइनर्स टू कम्युनिकेट बेटर, तो उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो सारी चीजों का। नॉट नेसेसरली दे हैव टू गो एंड कोड इट, बट डेवलपर के साथ बेटर कनेक्ट करने के लिए वो चीज वो यूज कर सकते हैं। लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है दे नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉम्प्ट्स, हाउ टू प्रॉम्प्ट इट। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना भी एआई टूल पकड़ा लो, अगर पता ही नहीं है कि उसको पूछना क्या है, देन दैट बिकम्स अ चैलेंज। सो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It's important, yeah. Yeah. So ultimately, it comes with the communication and understanding and logical understanding. दिमाग में कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर थिंग आपको चाहिए, उसको अगर दिमाग में अच्छे से ब्रेक डाउन करके वो कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू एआई, आस्किंग दैट थिंग, तो फिर वो फिर आंसर वैसे आता है। या So this tools can help students to understand the AI as well as implementation and support in the education also till the handover to the process to the developer, right? Okay. We have the candidates from different background. They are into full stack and we are also into technology. But sometimes our customers may expect one resource to handle all these things. Suppose if someone is building a POC, small project, and then he will hire the fresher because fresher will immediately join in a small scale companies. And then these people expect आप डिजाइन भी करो, आप डेवलप भी करो और आप डिप्लॉय भी करो. So what happens, these people learn to develop and deploy and they miss the design sense, and here is they breaks their career sense or somehow that brand evaluation, and something is missing in that career line here. Okay. So while you hire in your organizations, is it mandatory to being a UI UX designer to have the designs sets mandatory, or that can be adopted with AI or anything else as you mentioned here? सी ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट अप्रोच हो सकता है। सो व्हाट वी स्पेसिफिकली फोकस इज ऑन, आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, हम लोग वो स्किल सेट्स के ऊपर देखते ही नहीं है, ज्यादा ज्यादा ध्यान नहीं देते उस चीज को लेके। स्पेसिफिकली इंटर्न्स एंड जो न्यू जनरेशन किड्स आ रहे हैं इन द मार्केट, व्हाट वी लुक एट इट इज कि उनके पास एटीट्यूड सही है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी नए नए चीजें आप सीखने के लिए वो भूख है कि नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कल कुछ टूल्स नया आ रहा है मार्केट में, परसों वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज इट इज बिकमिंग सो वोलाटाइल दीज डेज। सो यू कैनॉट बी टूल डिपेंडेंट, एंड हम लोग भी वी आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल राइट नाउ कि वी आर नॉट। सो एक टाइम था जैसे कि मैं एकदम 3 3 साल 4 4 साल का लाइसेंसेस लेके बैठे हुए रहते थे हम लोग, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग अभी 4 4 साल का लाइसेंसेस अभी सोचते भी नहीं है कोई टूल का। सो व्हाट वी यूजुअली थिंक इज कि ओके वी हैव अ सेट ऑफ प्रॉब्लम, हाउ यू वांट टू सॉल्व इट, एंड उसका अगर हमारा लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास है,
देन वी थिंक ऑफ कि भाई अभी मार्केट में क्या क्या टूल्स है एंड कौन सा टूल हम लोग पिक करने से फास्टर वे में कर सकते हैं एंड बेटर वे में कर सकते हैं। ये वाला चीज अगर आपके इंटरनल टीम को एक्सपोजर है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड वो सारी चीजें, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है टू पिक द राइट टूल्स एंड वो सारी चीजें। बट वो एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू फील लाइक कि, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है, डोंट टेक मी अदरवाइज। मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, ठीक है, यूआई यूएक्स डिजाइन का ही था, ठीक Actually, है। this will help our student हाँ, what not to do. Right. या सो मैं आपको बोलता हूँ कि कैसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स का। मैं वो एक एग्जांपल बताता हूँ। सो आई जस्ट सेड कि आपको अगर फील्ड वर्क के लिए भेजना पड़े तो आप करोगे क्या? Hmm. पहले तो एक चीज ये है कि फील्ड वर्क में हम लोग भेजते भी नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है ये सारी चीजें, ठीक है। Hmm. हाइपोथेटिकली मैंने पूछा, तो आप सोचो कि कैसा काइंड ऑफ आंसर आया होगा। आई गॉट वन क्वेश्चन आंसर के जगह पे कि आप धूप में तो नहीं भेजोगे बिकॉज मेरा स्किन केयर रूटीन खराब हो जाएगा, ठीक है। सो आई वाज अमेज्ड टू अंडरस्टैंड, भाई साहब इतना साल हो गया मेरा स्किन केयर रूटीन के बारे में तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि लोगों का प्रायोरिटीज क्या हो रही हैं। इफ यू थिंक अबाउट दोज थिंग्स ना, तुमने ये क्वेश्चन मुझे नहीं पूछा कि यूआई यूएक्स फील्ड में मुझे ऐसा क्या जॉब करनी पड़ेगी कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन। वो अगर वो क्वेश्चन पूछता कि मैं ऑफिस के बाहर जाके क्या करना है मुझे, शायद मैं उसको हायर भी कर लूं कि ओके, Hmm. इसका क्यूरियोसिटी लेवल है। लेकिन Hmm. उसका कंसर्न ये था कि भाई मेरा तो स्किन केयर रूटीन खराब हो जाएगा, मैं अपने टर्म्स में वो करने वाला हूँ। इनिशियल फ्यू इयर्स ना, 2-3 इयर्स एटलीस्ट यू गिव इट अ चांस। आप रोक के मत रखो खुद को कि मैं मेरे टर्म्स में ही काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। Hmm. तो यू नीड दैट एक्सपोजर। अभी कोई कहाँ से अगर एक्सपोजर मिल रहा है ना, वो उसको मैंने थैंक टू भगवान बोल के उसको लेके उसको यूज करना चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज, रादर देन गेटिंग इनटू दैट ट्रैप ऑफ कि हाँ लोग यूजुअली क्या करते हैं। और एक चीज में मैं आपको बताता हूँ, इफ यू गो टू गूगल एंड सर्च टॉप 3 हाईएस्ट पेड जॉब, उसमें यूआई यूएक्स डिजाइन आता है डिफॉल्ट में, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि अगर मैं ये फील्ड में घुस जाऊं तो मेरे मालामाल हो जाऊंगा मैं, ठीक है। Hmm. बट अगर आप डेटा देखोगे, अगर अंदर जाओगे ना, द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी आर द टॉप ऑफ द पिरामिड गाइस, ठीक है। दोज हु आर एक्चुअली टेकिंग डिसीजन क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट। सो वो इम्पैक्ट के बदले पैसा मिलता है, वो एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं बनता है कि मैं आज 10 स्क्रीन बनाया तो मैं सबसे ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज गेम्स, बिकॉज अभी वो एक्सपोजर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि क्या ट्रेड ऑफ है। कि मुझे अगर कोई हायर कर रहा है तो व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन एंड मैं कहाँ पे फिट इन होता हूँ उसमें। एक एडवांटेज ऐसा, अगर आपके पास वो अवेयरनेस है, देन यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यू आर इन द राइट प्लेस और नॉट। बिकॉज अगर आप आउटग्रो कर जाओगे स्किल सेट्स में वहां पे, देन प्रोबेबली यू नो दैट कि इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड आप कोई अलग जगह पे। Expectations, and I will say, as you mentioned, I always mention in our overall mentoring sessions with students also, हम्म, we are not looking for your certificates is a gateway to enter the apply the job description only, but you will be hired as on your attitude and your real work experience. If you are working hard, definitely that confidence will show up on your speaking, whatever you talk in Marathi, Hindi, English, whatever, but that confidence will be show off here. And as you mentioned, the question quality from the students, हम्म, really it is worrying to business owners as well as the education ecosystems हम्म, also. कि whether can I work from home? Can I, as you mentioned, what will affect whether it's my health career or what is I want to sit at office and I want to work. It's he should look at the opportunity by training hard. I will learn more difficult things. So that's the most important part here. And that's why through internscope we ask them work minimum 6 project, otherwise you will not get the certificate, because certificate will be delivered on your live assignments, whatever you are delivering, showcasing. And Gautam, I will proudly say the students, the internscope crowd majorly is from
the suburb area who are struggling for the jobs or getting internship or mentorship here. Yeah. The I'll, I'll, student from I'll BCA background. yeah, if you allow me, then I'll tell you the brighter side of the things. Hmm. कि क्या मैं देख रहा हूँ अभी. What I feel is the current generation which is coming up, they have uh, you know बहुत ज्यादा एनर्जी है Hmm. उसमें. ठीक है. ये सेम चीज जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था, या फिर अभी जिनका अभी 5 to 7 years के एक्सपीरियंस में है, उनके कंपैरिजन में करंट जनरेशन का एनर्जी लेवल इज वेरी हाई. व्हाट इज द प्रॉब्लम विच आई फील इज कि वो लोग एक डिजिटल इंफॉर्मेशन एज में पैदा हुए हैं, एंड दे आर ओवरवेल्ड बाय इंफॉर्मेशन. उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, बिकॉज उनको पता नहीं है कि विच इंफॉर्मेशन इज राइट फॉर देम. बिकॉज फिंगर टिप में सारी चीजें अवेलेबल है वहां पे. यू गो टू इंटरनेट एंड देन देर आर लाइक, वहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, अपने आप को गुरु क्लेम करते हैं, सब लोग, सब सब ज्ञानी हैं, सब पंडित हैं, and सब. यू जस्ट गो टू यूट्यूब, देन यू सी लाइक 2-2 साल का एक्सपीरियंस में भी वो लोग चैनल खोल खोल के बैठे हुए हैं जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वहां पे. सो इट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर देम टू अंडरस्टैंड कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है. बिकॉज whenever I go to any university for a talk or something, वो होने के बाद यूजुअली whenever I interact with students, I get to know this problem with them. बिकॉज उनको पता है, ये उनका ऐसा नहीं है कि वो लोग दे जस्ट वांट टू डू इट ऑन पर्पस कि हाँ हमें एटीट्यूड दिखाना है, ऐसा कुछ करना है. समटाइम्स आई फील लाइक कि दे जस्ट डोंट नो इट कि राइट पाथ क्या है, क्या करना, क्या कर तो हम लोग लेंगे लेकिन करना क्या है वो नहीं पता है. सो गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाले केस में ना, व्हाट आई फील है इसकी इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे. Hmm. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा. लाखों 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 रुपए ले लेते हैं डिजाइन स्कूल्स में, तो स्पेसिफिकली आई सी. अब मेरा ये टॉक कोई सुनेगा तो मारेगा मेरे को, लेकिन डिजाइन स्कूल्स में चूना लगाना बंद कर देना चाहिए. ठीक है. इतना पैसा खर्चा करके तुम अगर 4 साल का एक अगर डिजाइन कोर्स तुम उनको करवा रहे हो, और 4-5 लाइव प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं है उनका कोर्स में, देन वो लोग इंडस्ट्री रेडी कैसे बनेंगे. Hmm. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट, कि आप 4 साल बिता दिए, एंड 4 साल के अंदर वो लोग फर्स्ट ईयर में जो टूल्स और वो सारी चीजें टेक्निक्स पढ़े होंगे ना, फाइनल ईयर तक वो जा चुका भी होगा मार्केट से. सो हाउ यू जस्ट कांट ब्लेम द स्टूडेंट्स और एनीवन कि हाँ ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं टाइप का. सो वो अवेयरनेस चारों तरफ से जरूरी है. एंड क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस में भी, कुछ कुछ क्लाइंट्स को तो वहां पे भी हमें समझाना पड़ता है कि जैसे कुछ लोग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में बताते हैं उनका एक्सपेक्टेशन की. लेट्स से एक प्रोजेक्ट चल रही है विच वी सपोज से कि ये 12 weeks लगेगा एक अच्छे तरीके से बनने के लिए. अरे 2 रिसोर्सेज डाल दो, इसको हम लोग 8 week में कर सकते हैं क्या. ठीक है. सो प्रैक्टिकली हर चीज ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. आई हैव टू गिव वेरी बैड एग्जांपल टू नो मेक देम अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता है भाई. कुछ कुछ चीज के लिए स्लो कुकिंग का, जो टेस्टी फूड स्लो कुकिंग में आता है, तुम्हें टेस्ट आता भी है. चाहिए एंड तुम डीप फ्राई कर दोगे तुरंत, तो कैसे होगा वो सारी चीजें. एंड True. देन वी ऑल्सो नीड टू नो, कभी कभी ऐसा लगता है कि वी नीड टू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट कि कहाँ भाग रहे हैं हम लोग. सो Hmm. मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो बीच बीच में थोड़ा सा वो जो अभी नॉइज बहुत ज्यादा हो गया है इंफॉर्मेशन का, Hmm. ये टूल ये कर सकता है, वो टूल वो कर सकता है. अभी आप ये भी देख सकते हो कि एक एक कंपनी एक एक टूल बनाते हैं, और कोई दूसरा कंपनी उनको 2 मिनट में एक फीचर की तरह, फॉर एग्जांपल गूगल गूगल हैज किल्ड मेनी एआई स्टार्टअप्स. वो एक नैनो बनाना लॉन्च किया, 6-6 कंपनीज बंद हो गए उसके बाद इमीडिएटली. सो Hmm. ये एक पर्टिकुलर टाइम है विच इज वेरी वेरी अनसर्टन. थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने के लिए टाइम लगेगा. एंड हम लोग भी एक तरफ मूव कर रहे हैं विच इज कॉल्ड यूएक्स गवर्नेंस. बिकॉज अभी there is no rule to kind of take care of what AI can do and what AI can't, because Hmm. human and AI के बीच में गैप अभी बचा नहीं है. सो पीपल कैन फेक इट. अभी बहुत सारे ऐसे भी एआई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोग एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, टोटली एआई बेस्ड, राइट. Hmm. तो वो अगर कोई अपना इंस्पिरेशन बना ले कोई बच्चा, तो वो तो कोई भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है, राइट.
So it becoming very very scary. तो governance level पे there I am pretty sure कि there will be like very very deep regulations आएंगे एंड वो कंट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे धीरे धीरे करके अभी लिंक्डइन में आप कोई अगर एआई जनरेटेड पोस्ट डालना चालू करोगे तो वहां पे वो एक मार्क दे देता है नीचे कि ये एआई जनरेटेड है करके. सो बट इट इज वॉलेंटियरिंग कि ये अभी कोई फोर्स नहीं कर रहा है उनको कि ऐसा दिखाना चाहिए करके, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट विल स्टार्ट टू फोर्स ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ. तो वहां But पे YouTube has started it because हाँ YouTube has stopped monetizing such channels with हाँ, क्योंकि AI उनका बिजनेस content. इम्पैक्ट हो रहा है वहां पे. स्लोली क्या होगा कि ये जैसे उन्हीं के ही टूल्स उनको किल करना चालू किए हैं, Hmm. राइट. जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप ह्यूमंस यूज करना बंद कर दो, यही सब बस यूज करो. तो पीपल आर जनरेटिंग कंटेंट देन, अगर कंटेंट अगर व्यू के बेसिस में अगर आ रहा है देन व्यू कैन बी फेक्ड आल्सो. सो लेकिन वो लोग दे आर स्पेंडिंग रियल मनी. तो अभी धीरे धीरे करके ये सब जो नॉइज है ना स्लोली स्लोली जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम कि क्या अडॉप्ट करना है और क्या नहीं करना है, वो ट्रांजिट पीरियड है. सो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एटलीस्ट स्टूडेंट्स लोगों के लिए. एंड हमारा जिम्मेदारी है कि उनको राइट डायरेक्शन दिखाना. एंड And एजुकेशन there you people and we are coming in the picture. That's why we have taken the vision to mentor these students from multiple background. Their career is something spoiling and missing, whatever reason it's. No one wants to do it purposely, but something is missing, and they are struggling being the employable. Whatever the reason is there, right? वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रोबेबली बच्चों को एक्सपोजर मिला नहीं है, एंड ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे बातें ठीक है लेकिन हम लोग करें तो करें क्या. सो प्योरली इंटर्नशिप पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं, व्हाट यू नीड इज अ पोर्टफोलियो. कभी भी आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है. सो व्हाट इज अ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स विच यू हैव डन एंड यू आर शोकेसिंग दैट. उसमें यूजुअली आप ये सब दिखाते हो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस यू हैव फॉलोड एंड एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप कैसे उसको सॉल्व किए हो, राइट, एंटायर जर्नी. उसके केस में व्हाट आई सजेस्ट इज, मेनी पीपल यू नो दे कम अंडर प्रेशर एंड ट्राई टू कॉपी अदर्स पोर्टफोलियो, बिकॉज आज के टाइम पे ना वो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही इजी है कि एक प्रोजेक्ट कहीं से उठा लो, थोड़ा सा कलर वाला चेंज कर लो, टेक्स्ट वेक्स्ट चेंज कर लो एंड यू कॉल इट कि हाँ ये मैंने बनाया है. सो बिकॉज हम लोग सालों सालों से देखते आ रहे हैं ना, सो देख के पता चल जाता है कि कौन सा किसमें ओरिजिनलिटी है किसमें नहीं है. सो डोंट ट्राई टू फेक इट. भले ही वो प्रोजेक्ट कितना भी डीपर आप पहुंचो नहीं पहुंचो वो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ. बिकॉज आज के टाइम पे ना सच्चे पोर्टफोलियोज दिखना बहुत कम हो गए हैं. सो वहां पे आप निश क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. भले ही एक ही प्रोजेक्ट डालो, लेकिन जो भी आप किए हो ना शिद्दत के साथ करो और डालो उसको. And I'm telling you कि you will get better calls from the companies rather than कोई एक ऐसा फैंसी सा पोर्टफोलियो बनाए हो जिसमें कि 10 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं and that doesn't make any sense to them. So इसलिए वो ओरिजिनलिटी वाला चीज पता चल जाती है पोर्टफोलियो देखते ही. एंड बिकॉज वेन एवर यू सेंड दैट टू समवन, उसमें से एक बेसिक कम्युनिकेशन एंड कर्टेसी वो चीज मेंटेन करो कि किसी को अगर मेल आप भेज रहे हो तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आपको क्या चाहिए वो चीज लिखो. थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मेल्स आते हैं वासंती जी मुझे, जहाँ पे लिखा होता है सब्जेक्ट लाइन पे PFA खत्म एंड एक अटैचमेंट रहेगा. यूजुअली वी डू नॉट इवन लुक एट इट. बिकॉज अगर मतलब हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं है जिम्मेदारी लेके कि भाई तुम्हारा करियर को ऊपर लेके जाएंगे. इट इज बोथ वे, क्योंकि आपको भी मेहनत करनी है, हमें भी फिर अच्छे बंदे चाहिए. सो अगर दोनों साइड से हैं तो फिर दोनों साइड से अच्छी तरीके से होना चाहिए ना. तो आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, आपका गोल क्या है, आप क्यों करना चाहते हो, एंड देन फॉर दैट अभी तक आपने क्या किया है थोड़ा सा एक समरी काइंड ऑफ लिखो, एंड देन यू अटैच योर पोर्टफोलियो ओवर देयर एंड सेंड इट टू समवन. आई एम वेरी वेरी श्योर दैट कि आपको वहां से बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा. Good idea. It's good tweak to students to adopt, and really it is insightful session for the students. Let's take a question. Do you have any questions from audience? With AI now generating UI layouts, so where do you see the role of human designer shifting in the next, let's say 3 to 5 years? Okay. Yeah. Hi, Amit. It's a very
गुड एंड क्रिटिकल क्वेश्चन. अभी 3 to 5 years तो अभी बहुत लंबा विजिबिलिटी हो गया, बिकॉज there's a lot of tools that is coming up. अभी हम लोग करंटली क्या अडॉप्ट कर चुके हैं वो वाला चीज मैं आपको एक बता देता हूँ, सो दैट विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव. तो पहले क्या होता था कि हम लोग स्केचिंग से स्टार्ट करते थे. सो लेट्स से पूरा प्रोसेस फॉलो किया, सपोज रिसर्च किया, आपका कौन सा विच टारगेट ऑडियंस यू आर फोकसिंग ऑन, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया, सब कुछ हो गया, एंड देन वी यूज टू स्टार्ट विद स्केचेस, एंड स्केचेस से वाई फ्रेमिंग में जाते थे. वाई फ्रेमिंग के बाद विजुअल डिजाइन होता था, जो ब्रांडिंग ब्रांडिंग चीजें आएगी और फाइनल कैसे दिखेगा वो सारी चीजें. सारी स्क्रीन बनने के बाद वी यूज टू गो फॉर प्रोटोटाइपिंग. नाउ आफ्टर कमिंग द एआई रिवोल्यूशन, नाउ स्केचिंग हार्डली हो रहा है. मतलब स्केचिंग हम लोग बहुत स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग काइंड ऑफ करते हैं हम लोग मीटिंग के टाइम पे ही. मतलब व्हाइट बोर्ड में हो गया या फिर डायरीज में हम लोग ऐसा जस्ट क्विक क्विक बनाते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाँ कैसा होने वाला है. एंड आइडिएशन में हम लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज एआई का एक एडवांटेजेस दिस की बहुत स्मॉलर टाइम में ज्यादा आउटपुट देने का कैपेसिटी है, जो ह्यूमन ब्रेन उतना नहीं कर पाएगा. लेकिन आप अगर बहुत सही से प्रॉम्प्ट करते हो तो वी गेट ए वेरी गुड आइडिया ऑफ कि कैसे काइंड ऑफ होने चाहिए. वो हम लोग बेसलाइन बना के आगे का पूरा ह्यूमन ब्रेन ही यूज होता है, जो वाईफ्रेम लेवल पे हम लोग जाते हैं. एक बार वाईफ्रेमिंग बन जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एआई यूज करते हैं. लेट्स से आप एक 30-40% वाईफ्रेम काइंड ऑफ बना लिया क्विक क्विक, उसको आप एआई को दे दो, उसको बोलो कि इसको नीट बना दे, वो अच्छे से बना देगा. सो जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट हम लोग एआई से नहीं करवा रहे हैं. सो वहां पे क्या करा रहे हैं उसे, जो हाँ क्लरिकल जॉब बहुत ज्यादा करा रहे हैं उससे, कि ये एक पर्टिकुलर आइडिया है, लेट्स से एक पॉपअप है, इस पॉपअप में हमें ये इनपुट और ऐसा काइंड ऑफ आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग. जनरेट 50 टाइप का पॉपअप, एंड देन वी सी कि ओके इसमें से दिस इज फिटिंग वेल, एंड ये 2-3 डायरेक्शन है, उसको लेके आगे लेके जाना. वहां पे डिसीजन मेकिंग में हम लोग अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन में कर रहे हैं. एंड आई फील दैट जितने भी टूल्स आ जाए, ये अप्रोच नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से. क्वांटिटेटिव चीजों में एआई को यूज करना चाहिए, नॉट इन क्वालिटेटिव चीजें, बिकॉज वहां पे फिर बहुत ही रोबोटिक काइंड ऑफ आउटपुट आ जाता है फिर वहां पे. आई होप आई आंसर्ड दैट. Yes, yes. Thank you. Yeah. या Anyone else? You can raise your hands. Okay, no question. We can move forward. Lokeshwari, can you move forward? See, it's the announcement. We have signed up the MOU with Modern College of Arts, Commerce, Science for internscope.com. Now, as you mentioned, education institutes also have to be mature, and really we are happy colleges are supporting our vision to build the employable youth. Means as you mentioned, tools can be executed, but the attitude can build them as employable. So we are pleased to announce we have signed up the MOU with Modern College. We can showcase few testimonials. As during the internscope journey, we have built almost 300 plus students' life. They are employable. Few of them we would like to showcase. Next. See, I will mention there are too many stories behind the internscope. We have contributed them, and now we came up to the automations or maximizing the scales. I will mention few cases. Can you move earlier slide, please? Yeah. Location cable. If you remember 4 to 5 years back, the case of Sinhagad College case, and almost 11 months was college on a strike, and that time this lady Madhura Khaire joined with the internscope for the internship, and she was from the electronics and telecommunication background. She worked with the live project with the image processing system on a Python and embedded system here. Then we deployed her with the international client, and now currently she is working with the UK with having good stable job settled in UK. See why I have showcased this case. If that time she do not found any right mentor,
she might have spoiled her career because the tag was for the whole batch, not the single student. Ki, okay, you are from that batch. Okay, whatever it is. Might be college may not be responsible, professors may not be responsible, but the sacrifice ultimately goes with the student's career here. And she built her career. There are so many stories. Shilpa, he's from VIT. He built his career earlier from the ANTC and now working in cyber security. Manthan and Sadbir, everyone is. You can see the list in further here. Can you see from where the students have done the internship with us? From Pune, suburb area, even VIT Vellore, and top universities, MIT, VIT, MIT, all these members are also joining. They are helping us to bridge the gap, career gap for the students. It's not the career gap, the building the skill gap and the attitude gap for the building their right employments. Yeah. Next year. List is going on. It's almost building every day we are adding new numbers in this list, and the missions is going to be continued. So we request everyone who has not registered on Internscope, they can register through the Internscope. We have recently launched our application, and they can be a part of this community, and let's grow together, help each other and build the ecosystem. And earlier mentioned, we are launching the Black Friday. Can you move for the Black Friday? Yeah. We have taken the initiative by launching the Black Friday sale. Here we are inviting small scale industries, big industries, large industries to publish their unlimited jobs with no cost. That's why your one job post will create the opportunities, hopes for the at least minimum 20 people members who can apply to the job post, or they can attempt for the interviews itself also here. So we request all business owner to publish their job post, and this is open for all Friday. Currently it is open for all Friday for all posts. Just avail the benefit and share the word of mouth in your communities. That's it. Thank you.